Hello, students. Welcome to Green Plus Institute of Paramedical Sciences. I am Dr. Maninder Kaur, and today we are going to talk about specific positions for surgery. So, if you remember, we have already done a lecture on general considerations regarding patient positions in OT that is relevant for OT technician, anesthesia technician, nursing staff, as well as other people who would be a part of the OT, right? So today we're going to focus on the specific positions, the various positions that are required during surgery. So what are those positions and what precautions are you supposed to take during those positions, right? So the first one जो हम समझने वाले हैं is about positioning during GA. Okay, this is very important कि intubation के time पे आप किस तरह की positioning patient की करते हैं, ठीक है, during induction of anesthesia. Now in this, the position is basically a supine position first of all. इसमें हेड एक्सटेंडेड होता है और नेक थोड़ा सा फ्लेक्स्ड होता है, ठीक है. सो इससे क्या होता है, जो ये हेड एक्सटेंशन और नेक फ्लेक्शन से the basically the laryngeal and the tracheal axis and the oropharyngeal axis, they all come in one line, right? So that is why it's the visualization of the trachea, or rather the larynx and the vocal cords, is more easy. Now if you notice in this that they are showing in the diagram, so you notice that the head is basically horizontally aligned, straight है, ये part जो है ये सीधा हो जाता है. तो आपका जो ग्लेबेला है, ग्लेबेला इज दिस थिंग जहाँ पे बिंदी लगती है ना, जो ग्लेबेला है वो और जो चिन है ये एक लाइन में आ जाता है, ठीक है. Then the neck is a bit flexed. If you notice here, see there is flexion at the C6, C7, right? So there is flexion at the C6, C7, but there is extension at the atlanto-occipital joint. ओके, सो हेड जो है वो एक्सटेंडेड होता है लेकिन नेक जो है वो फ्लेक्स है. सपोज इफ दिस इज द बॉडी, सो वी आर फ्लेक्सिंग द नेक. इफ दिस इज द नेक, ओके, सो वी आर फ्लेक्सिंग द नेक एंड यू आर एक्सटेंडिंग द हेड. ये हेड है, ठीक है. तो यहां से हेड एक्सटेंड हो रहा है और नेक फ्लेक्स हो रहा है, इससे ये चीज जो है एक लाइन में आ जाती है. ओके, सो हाउ वुड यू ऑल्सो नो कि आपने एडिक्वेट किया है? अगेन यू हैव टू सी दैट द एक्सटर्नल ऑडिटरी मिएटस, द एक्सटर्नल ऑडिटरी मिएटस जो ये ओपनिंग है, ठीक है, and the suprasternal notch, ye wala. So this has to be in one line when the patient is lying down. Okay, so for this generally some headrest or maybe a pillow or something like that, or maybe sometimes depending on the patient's position or size, you can also have a head ring, a headrest, a sheet that is rolled and kept, ताकि ये positioning ऐसी हो सके. So you are, remember this, that there's flexion at the cervical level, there is C6, C7, and there is extension at the atlanto-occipital joint, there is C1 and C2. Okay, so neck flexed and head extended. Now the aim is, as I told you, to visualize the oral, pharyngeal and tracheal spaces. तो फिर ही आप आगे देख पाओगे, right? अब इसमें complications भी हो सकती हैं. What are the possible complications? Very common is trauma. क्योंकि जब आप intubation करते हो, there could be trauma to the lips, trauma to the teeth, as we had spoken about in PSC also, and there could be jaw dislocations अगर आप बहुत जोर लगा दो. Then there could be laryngeal or vocal cord injury if you're trying to force the tube inside. There could be epistaxis. There could be trauma to the pharyngeal wall. Basically, all kinds of trauma inside, right? अगर आपकी positioning सही नहीं होगी तो उसे visualize करने के लिए आप ज्यादा जोर लगाओगे, यहाँ वहां हाथ मारोगे, तो उससे क्या होएगा? उससे there is more chances of injury. So this is simple positioning during G. अब इसके बाद आता है surgical positioning. What all different surgeries में कौन सी position होती है? तो पहली एक सबसे कॉमन पोजीशन जो है हमें पता होनी चाहिए, दैट इज द सुपाइन पोजीशन और डॉर्सल पोजीशन. दैट इज बेसिकली द पेशेंट लाइंग डाउन, यू कैन से इन द एनाटॉमिकल पोजीशन ऑफ द बॉडी, राइट? तो पेशेंट इज लाइंग फ्लैट ऑन हिज बैक. The arms may be placed either beside the body, सीधा ऐसे, अगर ये बॉडी है तो ऐसे सीधा नीचे को, या you can keep it abducted at the sides on the arm boards. Okay, अब इसमें क्या होता है, साथ में गाउन जो है जनरली वो लिफ्ट करके एक स्क्रीन बना दी जाती है, so that it is the patient can't visualize niche. Okay, and it's also covering the patient's eyes, or you can say to maintain the dignity of the patient. Now this is very common position for surgical procedures on the abdomen, like laparotomies or some gynecological positions, for example during hysterectomy, for ectopic pregnancy, है ना, जहां से भी अपने abdomen को कह लो एड्रेस करना है. मैंने ऑर्थोपेडिक पोजिशन, ऑर्थोपेडिक केसेस ऑल्सो, अगर आपको कोई फोर आर्म की सर्जरी करनी है, अगर आपको कोई टिबिया की सर्जरी करनी है ना, इवन फीमर की अगर प्लेटिंग वगैरह होनी है तो फिर वो सुपाइन पोजिशन में ही होती है.
अब इसमें आपने ध्यान क्या रखना है, देयर आर सम प्रिकॉशंस एंड देयर आर सम कॉम्प्लिकेशंस दैट कैन हैपन। तो प्रिकॉशंस क्या है, पहले तो आपको हेड को हाइपर एक्सटेंड नहीं करना है, ऐसे नहीं रखना है, ठीक है। उससे क्या होएगा कि हेड हाइपर एक्सटेंडेड हो जाएगा, तो पेशेंट को बाद में पेन होनी शुरू हो जाएगी। यू हैव टू इंश्योर दैट द आर्म्स आर नॉट अबडक्टेड बियॉन्ड 90। अगर अब मैं ये आर्म है तो दिस इज 90, अगर मैं इसको ऐसे रखूंगी, पेशेंट को कहीं को ऐसे लिटा देते पीछे को ना, तो इससे क्या होगा, ये चीज दुखनी शुरू हो जाएगी, बाद में पेशेंट को मस्कुलर एक्स एंड पेन्स रहेंगे। तो सर्जरी की पेन नहीं हो रही होगी, लेकिन ये चीजों की पेन हो रही है ना, तो दैट डज नॉट मेक सेंस। देन यू हैव टू ऑल्सो नोट दैट द आर्म बोर्ड इज पैडेड, कुशन होना चाहिए। एक, बिकॉज आपकी नर्व इंजरी नहीं होएगी उसमें प्रेशर पड़ पड़ के। दूसरा, आपने कॉटरी यूज करनी है तो डायरेक्ट मेटल कॉन्टैक्ट तो वैसे भी नहीं होना चाहिए। देन यू हैव टू सी दैट द हैंड इज इन प्रोन पोजिशन, कि जब पेशेंट ने अपना हैंड रखा है तो इफ आई शो इट लाइक दिस, इट शुड बी लाइक दिस, नॉट लाइक दिस। ओके, ट्राई टू कीप इट लाइक दिस, कि दैट इज मोर relaxed position of the body. That is why. Then arms do not overlap or hang over the table edge. Again the same thing. अगर पेशेंट के हम बोलते ना आर्म सपोर्ट लगा दो जी, आर्म सपोर्ट लगा दी, आर्म सपोर्ट यहाँ है, आपकी बाजू यहाँ है, तो वो हवा में रहेगी। हवा में रहने से क्या होगा, ये ऐसे पीछे को ट्रैक्शन पड़ेगा, तो यहाँ पे नर्व इंजरी हो सकती है, मस्कुलर पेन्स हो सकते हैं, ठीक है। सो यू हैव टू प्रिवेंट दैट। Then obviously patient is protected from metal contact, very important. And all the bony prominences, ये तो हर एक तरह की position के लिए important है। All bony prominences should be protected. You have to see to it कि bony prominences ऐसी point पे ना हो जहाँ पे उनको possibly वहां पे बेड सोर हो जाए। हाँ, हम बोलेंगे भाई घंटे भर से थोड़ा बेड सोर हो जाएगा, बट यस हो सकता है, प्रेशर पॉइंट है, प्रेशर पॉइंट से अंदर नेक्रोसिस हो सकता है, डिपेंडिंग कि कितना पेशेंट के अंदर फैट कंटेंट कैसा है, उसके यहाँ पे जहाँ पे वो प्रेशर पड़ रहा है वो बोनी प्रोमिनेंसेस पे कितना पैडिंग है ना, सो दैट विल मेक अ डिफरेंस। नाउ इन द सुपाइन पोजीशन द बेसिक प्रोमिनेंसेस दैट यू हैव टू टेक केयर ऑफ इज द ऑक्सीपिट, ठीक है, द स्कैपुले, द थोरैसिक वर्टेब्रे, द ओलेक्रेनॉन, द सेक्रम कॉकेक्स एंड द कैल्केनियम, ठीक है। नाउ व्हाट आर द पॉसिबल कॉम्प्लिकेशंस दैट कैन अकर। बैकएक हो सकता है, अगर लंबोसेक्रल कर्वेचर को आप सपोर्ट नहीं दे रहे हो प्रॉपर नीचे, है ना, तो वो बैकएक कर सकता है। पैरालिसिस हो सकता है हैंड एंड आर्म का, जो मैंने बताया, अगर हैंगिंग हो रहा है या ओवर एबडक्शन हो रही है उससे पैरालिसिस हो सकती है। ब्रेकियल प्लेक्सस खींचे जा सकते हैं, है ना, उसकी वजह से हो सकता है। रेडियल अल्नार नर्व पैल्सी हो सकती है, अगर एल्बो हैंग करता रह जाएगा तो, या अगर बहुत टाइट आपने स्ट्रैप कर दिया उसको कि हिले ही ना भाई, तो उससे पैल्सी हो सकती है। देन कंटिन्यूस प्रेशर ऑन द calves may cause venous stasis resulting in thrombosis which can lead to pulmonary embolism। क्योंकि पेशेंट लेटा है, उसके ऊपर आपने और अपना सब सर्जिकल सामान भी रख दिया है, तो उससे there could be a continuous pressure on the lower limb का calf muscles, right? So these are the possible complications. Now here you can see the possible pressure points as I told you, right? Pressure points इनमें कौन से आ जाते हैं, एक ऑक्सीपिट हो गया, स्कैप्यूले हो गए, फिर हमारा ओलेक्रेनॉन हो गया, सेक्रम कॉकेक्स हो गया, थोरैसिक वर्टेब्रे हो गए एंड कैल्केनियम हो गया, ठीक है। दीज आर द प्रेशर पॉइंट्स फॉर सुपाइन पोजीशन। देन वी कम टू द नेक्स्ट पोजीशन, दैट इज द प्रोन पोजीशन। प्रोन क्या है, बेसिकली उल्टा लेट जाना। सुपाइन क्या था, सीधे सीधे लेटना, है ना। प्रोन इज उल्टा लेट जाना। इसमें द पेशेंट इज लाइंग ऑन द एब्डोमेन विद द एब्डोमेन ऑन द टेबल सरफेस, द आर्म्स आर प्लेस्ड अबव द हेड। जनरली ऐसे पोजीशन में आर्म्स आगे आ जाते हैं, ऐसे ऐसे। आपको हेड को जो एक साइड में टर्न करके, किसी भी एक साइड में टर्न करके रख लेना चाहिए, बिकॉज डायरेक्टली नोज कंप्रेस होएगा, ब्रीदिंग में इशू आ सकता है, और अगर ट्यूब डली है तो ट्यूब कंप्रेस होएगी, तो लैटरल करोगे तो there will be no compression, okay, and there will be no injury also. Then pillows are placed, this is very important, the pillows are placed under the shoulders and the hips and also the feet. Why? Because you have to keep the abdomen free. Abdomen free रहेगा तो पेशेंट की ब्रीदिंग सही रहेगी, वन। दूसरा, अगर जो सर्जिकल साइट है, जैसे मेनी मेनी टाइम्स प्रोन पोजीशन इज डन फॉर लाइक स्पाइन सर्जरीज फॉर एग्जांपल, बैक की सर्जरी के लिए आप ऑब्वियसली प्रोन कर रहे हो, है ना, तो स्पाइन सर्जरीज के लिए आप कर रहे हो, जब अगर एब्डोमेन कंप्रेस होएगा तो अपार्ट फ्रॉम द फैक्ट दैट द पेशेंट ब्रीथ नहीं कर पाएगा सही से, वेरी इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट इसके वीनस कंजेशन हो जाती है सर्जिकल साइट पे, उसकी वजह से ब्लीडिंग ज्यादा होती है सर्जिकल साइट से, क्योंकि एब्डोमेन कंप्रेस हो रहा होता है इसीलिए, ठीक है। Now, access for all surgeries involving the posterior back, obviously this is used for that. जैसे cervical spine हो गया, back हो गया, rectal area के लिए भी करते हैं, पाइलोनाइडल साइनसेस होंगे तो उससे कर लोगे। कई बार डोर्सल एक्सट्रीमिटीज के लिए भी आपको अगर कोई कई लोग जैसे कैल्केनियल स्पर हो गया, टेंडोएक्लिस रिपेयर होगी, वो प्रोन पोजीशन में करते हैं, ठीक है। See, here you can see that the child is kept in prone position. What is important to note in this is basically that, see, आर्म्स उसके ऐसे फ्लेक्स करके हमने आगे को रखे, जैसे मैंने आपको बताया,
फिर इसका हेड हमने एक साइड को टर्न करके रखा है, आपने एक सपोर्ट दिए अंडर द शोल्डर्स, वन अंडर द हिप्स, और ये देखो यहाँ पे इसका एब्डोमेन जो है ये फ्री है, ठीक है। Again, another support is given below the legs. Now, if you remember what we had spoken about in the general considerations, पेशेंट को इन्होंने स्ट्रैप भी किया हुआ है यहाँ से, ताकि पेशेंट गिरे ना, ठीक है। हालांकि ये पॉसिबली ऑब्वियसली जीए में हो रहा होगा, बट फिर भी इट इज द चाइल्ड हैज बीन स्ट्रैप, बिकॉज पीडियाट्रिक्स में ये ध्यान रखना पड़ता है कि चाइल्ड जो है अच्छे से स्ट्रैप किया गया हो, ताकि वो इंजरी या फॉल के चांसेस ना हो। Then, now what are the other precautions that you have to take for prone? एक तो obviously pillow or towel under the shoulders and hip, जो हमने बोला है ना, will facilitate chest expansion and will reduce abdominal pressure, जिसकी वजह से the venous oozing at operation site will be less. Then head should not be hyperextended again. It has to be placed on side and kept supported. ऐसा नहीं कि हवा में लटक रहा है वो ऐसे हो गया है ना, अगर हमने लिटाया ऐसे ऐसे को गिर गया नीचे, तो ऐसे नहीं होना चाहिए। ऐसे होगा तो क्या होगा, अगेन it can cause cervical spine injury, it can cause muscular pains later on, then it also can cause venous congestion of the head. Then the pressure points again should be well padded. कौन से होंगे, ये देखो अभी सिर ऐसे है और ऐसे गिरा हुआ है, तो cheeks हो गए, ear हो गया, ठीक है। then the acromion process, जो ये वाला पार्ट आएगा, फिर breast, genitalia, patella, dorsum of feet and toes, okay। कॉम्प्लिकेशन क्या आ सकती है, एक हो सकता है लोअर नेक एंड अपर बैक पेन रिजल्टिंग फ्रॉम हाइपर एक्सटेंशन ऑफ द हेड। देन अगेन आपने आर्म रिस्ट्रेनर में अगर डाल दिया है उसको ऐसे करके, है ना, तो उससे रेडियल अल्नार पाल्सी हो सकती है। हाइपोटेंशन हो सकता है, अगर आपके एब्डोमेन में प्रेशर पड़ रहा है तो वीनस रिटर्न कम हो जाएगा, आईवीसी पे प्रेशर आएगा, देयर विल बी पूलिंग ऑफ ब्लड इन द लोअर एक्सट्रीमिटीज। देन शोल्डर डिसलोकेशन हो सकती है, कई बार आपने कई ऐसे करते हैं ना, कई ऐसे करा देते हैं, तो अब जब ऐसे आप हाथ ऊपर करा दोगे तो ये डिसलोकेट हो सकता है, ठीक है। तो अगेन दैट हैज टू बी टेकन केयर ऑफ। अपार्ट फ्रॉम दैट, अपार्ट फ्रॉम डिसलोकेशन, इट कैन आल्सो कॉज ब्रेकियल प्लेक्सस इंजरी। अगेन अगर ओवरहेड अबडक्शन हो रही है तो ब्रेकियल प्लेक्सस इंजरी हो ही सकती है, ठीक है। नाउ हियर यू कैन सी द प्रेशर पॉइंट्स अगेन, है ना, यू हैव द फ्रंटल बोन, यू हैव द मैंडिबल, द ह्यूमरस, then the breastbone, the tuberosities of the pelvis, patella, and the tibia. Okay. Now, this is with the prone and supine and prone position. अब आ जाता है Trendelenburg position. What is Trendelenburg position? Trendelenburg position is something कि आप supine को आपने head down कर दिया, supine position में head down हो गया, that is Trendelenburg position, ठीक है। So patient is lying supine with the knees over lower break of the table and the head is tilted 15 degree or according to the surgeon's preference, कितना सर्जन चाहता है, ठीक है। आर्म्स में भी प्लेस आइदर ऑन द चेस्ट, ऐसे भी आप रखवा सकते हो, सीधे ही रखा सकते हो, या आर्म बोर्ड पे रखा सकते हो, डिपेंडिंग कि क्या सर्जरी हो रही है। नाउ इट्स अ कॉमन सर्जिकल पोजीशन फॉर लैप्रोस्कोपिक सर्जरीज ऑफ द पेल्विस, जैसे अगर कोई लैप्रोस्कोपिक हिस्टेक्टमी करना चाहता है, कोई लैप्रोस्कोपिक एक्टोपिक प्रेगनेंसी करना चाहता है, लैप्रोस्कोपिक अपेंडिसेक्टमी करना चाहता है, तो उससे क्या होएगा, बेसिकली क्यों ऐसे कर रहे हैं, देखो जब उन्होंने हेड लो कर दिया तो जो एब्डोमिनल ऑर्गन्स है, जो इंटेस्टाइन्स वगैरह है, वो बिकॉज ऑफ द पोजिशन इटसेल्फ, ग्रेविटी से अपर एब्डोमेन की तरफ चले जाएंगे, तो आपका पेल्विस का एरिया थोड़ा खाली हो जाएगा, दैट इज वाई इट्स इजियर टू विजुअलाइज द पेल्विस देन, दैट इज वाई दिस पोजिशन इज टेकन, ठीक है। नाउ यूजिंग ऑफ शोल्डर और नी ब्रेसेस में बेनिफिट पेशेंट फ्रॉम स्लाइडिंग, अगर आप वहां पे कोई ब्रेस लगा दो, है ना, नहीं तो कई पेशेंट अगर हैवी होते हैं तो वो नीचे से रखने शुरू हो जाते हैं, तो वहां पे आपको सपोर्ट देना पड़ता है, ब्रेस देनी पड़ती है। नाउ व्हाट प्रिकॉशन, अगेन इसमें भी आपने हेड को हाइपर एक्सटेंड नहीं करना है, आर्म को ओवर अबडक्ट नहीं करना है, 90 डिग्री के ऊपर अबडक्शन नहीं होनी चाहिए। हैंड्स शुड बी ऑन पैडेड आर्म बोर्ड्स, जैसे सुपाइनेशन में होता है। देन आर्म्स शुड नॉट ओवरलैप द टेबल एज और हैंग ओवर। Patient should be protected from metal contact. यहाँ पे again the bony prominences are the same as that of the supine position, ठीक है। Then potential complication क्या हो जाता है, अभी एक complication जो हमें पता है is basically, देखो आपने पेशेंट को ऐसे से ऐसे कर दिया तो क्या हो जाएगा, लेग्स से venous return ज्यादा जाएगी to the cardiovascular system, plus there will be more blood pooling down in the brain, so it can cause changes in blood pressure because of the increased venous return. इट कैन कॉज सेरेब्रल एडीमा, मतलब ब्लड प्रेशर बढ़ेगा, ठीक है। इट कैन कॉज सेरेब्रल एडीमा, इट कैन कॉज कंजेशन ऑफ द फेस एंड नेक, क्योंकि जो वीनस ड्रेनेज है वो थोड़ी स्लो हो जाती है उसकी वजह से, बिकॉज आप कूलिंग हो रही है ब्लड की, है ना, दैट वे। नाउ टू स्टीप अ पोजिशन कैन रिजल्ट इन साइनोसिस ड्यू टू ऑल्टरेशन ऑन द डायफ्राग्मेटिक एक्सटेंशन एंड द लंग एक्सपेंशन।
Then apart from that, shearing of skin can also occur during the positioning of this patient. मतलब स्किन की इंजरी हो सकती है, छिल सकता है स्किन. नाउ द रिवर्स ट्रेंडनबर्ग पोजिशन. व्हाट इज दिस? अभी हमने बताया था ट्रेंडनबर्ग, हमने क्या बोला कि हेड डाउन है ना, तो रिवर्स में क्या आएगा, उल्टा हो जाएगा, दैट इज हेड अप हो गया. ठीक है, तो इसमें क्या कर रहे हैं, इट्स अगेन सुपाइन पोजिशन विद आर्म्स आइदर बाय द साइड और ऑन द आर्म बोर्ड. Table is tilted 5 to 10 degree, raising the head. Now, a sandbag may also be used below the neck and shoulder blade for extension of the neck. Now, this is done when, ये जनरली हम ENT प्रोसीजर्स में बहुत कॉमनली करते हैं. ठीक है, तो उनमें क्या होगा कि आपने शोल्डर ब्लेड दे दिया, इवन सर्वाइकल स्पाइन के अगर अप्रोच में हम कर रहे हैं, है ना, तो शोल्डर ब्लेड देके तो आपने पीछे नेक को एक्सटेंड कर लेते हैं, तो उससे क्या है, ये एरिया ओपन अप हो जाता है ना, तो इट्स इजियर टू visualize that surgical site. Now the head is stabilized by a head ring, position often used for head and neck surgeries to reduce the venous congestion. Again देखो, आपने जब पोजीशन ऐसे कर ली है तो यहाँ तो फिर पूलिंग ऑफ ब्लड कहाँ हो रही है, लोअर लिम्स में हो रही है ना, तो लोअर लिम्स में पूलिंग होगी तो ऊपर ब्लड ब्लीडिंग, वीनस कंजेशन नहीं होगा, वीनस कंजेशन नहीं होगा तो ब्लीडिंग थोड़ी सी कम होगी. ठीक है, अपार्ट फ्रॉम द फैक्ट दैट इट विल बी बेटर विजुअलाइज्ड आल्सो. And to prevent stomach regurgitation during induction of anesthesia. कई बारी during induction of anesthesia भी ये थोड़ी सी head up की position दी जाती है ताकि stomach regurgitation ना होए. ठीक है, एस्पिरेशन के चांसेस कम हो जाते हैं. नाउ व्हाट प्रिकॉशन, एक प्रिकॉशन इन सब पोजीशन, बिकॉज ये सब सुपाइन वाली है तो कुछ सुपाइन वाले तो आने ही है ना, सेम वो वाले पॉइंट्स आएंगे यहाँ पे भी कि आपको हेड को हाइपर एक्सटेंड नहीं करना है, आर्म को ओवरहेड अबडक्शन नहीं करनी है, मतलब 90 डिग्री से ऊपर अबडक्शन नहीं करनी है. हैंड शुड बी ऑन पैडेड आर्म बोर्ड्स, हैंड आर्म्स शुड नॉट ओवरलैप द टेबल एज और हैंग ओवर. देन पेशेंट शुड नॉट हैव मेटल कॉन्टैक्ट, should be protected from metal contact. Bony prominences जो है, same bony prominences supine वाली should be well protected. Now apart from this, what else you can do? अगर लंबी सर्जरी और ऐसे चलने वाली है तो आप एंटी एम्बोलिक स्टॉकिंग दे सकते हो, प्रेशर स्टॉकिंग्स दे सकते हो पेशेंट को फॉर द लोअर लिम्स, जो काफ मसल्स के लिए. उससे क्या होएगा, देयर बी नो पूलिंग ऑफ ब्लड इन द calf muscles, तो chances of DVT will reduce, thrombosis will reduce. Then the foot bracket may be used to prevent sliding. अगे देखो, ऊपर हम क्या कर रहे थे, शोल्डर ब्रेस दे रहे थे कि आगे को ना सरके. नीचे के लिए हम क्या कर सकते हैं, नीचे हम पैरों को ब्रैकेट दे सकते हैं, सपोर्ट दे सकते हैं नीचे से, सो दैट नीचे को ना सरके, है ना. ये अगर मेरा पोजीशन ऐसा करा है मैंने, तो अगर मेरे पास यहाँ पे कोई सपोर्ट है तो आई विल नॉट फॉल डाउन ना, अदरवाइज आई कैन जस्ट सिंपली स्लाइड डाउन. तो वो स्लाइड डाउन प्रिवेंट करने के लिए ब्रैकेट दिया जा रहा है. ठीक है, नाउ कॉम्प्लिकेशन क्या हो सकते हैं, बैकेक हो सकती है बिकॉज ऑफ अनसपोर्टेड लंबोसेक्रल कर्वेचर, पैरालिसिस हो सकता है अगेन सेम आर्म का. ठीक है, अल्नर रेडियल नर्व पैल्सी हो सकती है अगर हैंगिंग आर्म होगी तो. पल्मोनरी एम्बोलिज्म हो सकता है, जो हमने बोला अगर वीनस स्टेसिस हो रहा है काफ मसल्स में तो फिर देयर कुड बी पल्मोनरी एम्बोलिज्म. कार्डियोवैस्कुलर ओवरलोड भी हो सकता है अगर क्विक रिटर्न हो रहा है ऑफ द पूलिंग ऑफ द ब्लड, दैट इज बिकॉज आपने पहले रिवर्स ट्रेंडनबर्ग किया, उसके बाद आप सीधा भी तो करेंगे ना. ठीक है, okay, again one more, reverse Trendelenburg is very commonly used nowadays, जो आप ज्यादा commonly देखोगे apart from head and neck is for lap cholecystectomy. ठीक है, again the same thing, आपने upper abdomen को focus करना है, या even cholecystectomy के लिए, even for liver surgeries, इनके लिए भी आप रिवर्स ट्रेंडनबर्ग देते हैं. बिकॉज आप जब रिवर्स ट्रेंडनबर्ग देते हैं तो क्या होता है, इंटेस्टाइन अभी जो है वो लोअर एब्डोमेन की तरफ चली जाती है. ठीक है, जो जो फ्री है, विच इज नॉट फिक्स्ड, द इंटेस्टाइन दैट इज नॉट फिक्स्ड will move according to gravity, है ना, तो सिंपली उस वजह से आप रिवर्स ट्रेंडनबर्ग देते हैं. ना अगेन स्किन शेयरिंग हो सकती है अगर स्लाइडिंग हो रही है तो उसकी वजह से. तो देखो अभी यहाँ पे सेम प्रेशर पॉइंट्स आ जाएंगे, बस जस्ट दैट द पोजीशन इज विद हेड अप. ओके, here you can see the foot bracket that has been given to the patient so that he does not slide down. देन आ गया लिथोटमी पोजीशन. लिथोटमी क्या है, बेसिकली पैरों को ऐसे टांग देना ऊपर. ठीक है, सुपाइन में, लेकिन हम पैर टांग रहे हैं अभी, तो क्या कर रहे हैं, पेशेंट लाइज इन सुपाइन पोजीशन विद बटक्स ऑन द लोअर ब्रेक ऑफ द टेबल. यहां से टेबल जो है वो ब्रेक की जा रही है. ठीक है, नाउ लिथोटमी स्टिरअप्स आर प्लेस्ड इन पोजीशन लेवल विद द पेशेंट्स इस्चियल स्पाइन, है ना. इस्चियल स्पाइन के हिसाब से आप पेल्पेट करते हो पेल्विस से लेके वहां, उसके हिसाब से आप जो स्टिरअप्स है, मतलब जो स्टैंड्स होते हैं, जिसको हम लिथोटमी पोल्स भी कहते हैं, स्टिरअप्स कहते हैं, स्टैंड कहते हैं. ठीक है, ये चीज वहां पे अटैच की जाती है. एंड द आर्म्स आर प्लेस्ड आइदर ऑन द चेस्ट और ऑन द आर्म बोर्ड. द लेग्स आर लिफ्टेड टुगेदर अपवर्ड्स एंड आउटवर्ड्स, इट्स लाइक अपवर्ड्स एंड आउटवर्ड्स ऐसे. ठीक है, एंड द फीट प्लेस्ड इन द नी क्रच और द कैंडी केन.
Now this is a common procedure obviously for gynecological procedures. आपको कुछ भी थ्रू द वजाइना करना है, आपको अगर नॉर्मल डिलीवरी करानी है, आपको अगर वजाइनल हिस्टेक्टमी करानी है, अगर आपको लोकल वजाइनल कोई प्रोसीजर करना है, अगर आपको यूरोलॉजिकल प्रोसीजर्स करने हैं, ठीक है, कोई पेरिनियल प्रोसीजर करना है, कोई रेक्टल प्रोसीजर करना है, तो इन सब के लिए लिथोटमी बनेगी, ठीक है। नाउ प्रिकॉशन क्या है? पहली चीज के टू पर्सन आर रिक्वायर्ड टू रेज द लेग साइमल्टेनियसली बाय ग्रास्पिंग द सोल एंड अदर हैंड सपोर्टिंग द काफ। एक सोल को पकड़ेगा, एक काफ काफ लेग को पकड़ेगा। ऐसे नहीं कि बस ये एक उठा लिया एक छोड़ दिया, है ना। उससे क्या होता है कि जो ब्लड फ्लो है वो एक जैसा रहता है। देन द स्टिरअप बार्स मस्ट बी चेक्ड एंड सिक्योर्ड बिफोर यूज एंड इट्स हाइट शुड बी सिमिलर। ऐसा नहीं होना चाहिए कि एक पैर ज्यादा ऊपर है एक पैर ज्यादा नीचे है, तो वो सेम लाइट लेवल पे होना चाहिए, वन। एंड उसको सही से सिक्योर करना है, क्योंकि अगर वहां से पेशेंट का पैर गिर गया तो वो डेफिनेटली फ्रैक्चर हो जाएगा, ठीक है। देन द बटक शुड मस्ट बी इवन विद द एज ऑफ द बेड टू प्रिवेंट अ लंबोसेक्रल स्ट्रेन। अगेन, जो अगर ये बेड का मेरा एज यहाँ पे बेड खत्म हो रहा है, तो मेरा ये यहाँ पे लिथोटमी का मतलब जो यहाँ पे मेरे स्टिल स्पाइन आने चाहिए। अगर मैं ऐसे करूंगी तो भी वो स्ट्रेन करेगा, अगर मैं ऐसे आगे रख दूंगी और ये हवा में होएगा एंड वाला पार्ट, तो फिर भी वो स्ट्रेन करेगा, ठीक है। Then anti-embolic stocking may also be used to promote venous return, and the bony prominences obviously need to be protected. Now, कॉम्प्लिकेशन क्या आ सकता है? एक सिवियर बैकएक हो सकता है। कब होएगा? जब वो अगर सिरप्स आपने ज्यादा ऊंचे लगा दिए तो क्या होगा? ट्रैक्शन होगी, है ना। तो लिम्ब को ट्रैक्शन होगी तो वो बैक पे भी स्ट्रेन डालेगी, तो बैकएक हो सकता है। द काफ होल्डर में रिजल्ट इन पेरिनियल और फीमोरल ऑब्ट्यूरेटर नर्व डैमेज। तो पेरोनियल नर्व डैमेज हो सकती है, ऑब्ट्यूरेटर, फीमोरल, तीनों नर्व्स डैमेज हो सकती है। आपकी किस तरह से आपने स्टिरअप लगाया उसके हिसाब से। देन ऑस्टियोआर्थराइटिस या स्टिफ हिप हुआ, वो कैन कॉज एन इशू, स्पेशली अगर आप रफली हैंडल कर रहे हैं तो। नो वेरी क्विक लोअरिंग ऑफ द लेग्स में कॉज हाइपोटेंशन, बिकॉज एकदम से सारा ब्लड जो है फिर से लेग्स में आ जाएगा, राइट। देन द फीमोरल नर्व डैमेज कैन अकर बिकॉज ऑफ अक्यूटली फ्लेक्स थाइज। अगर आपने बहुत ज्यादा ऐसे करके फ्लेक्स करके डाल दिया तो वो प्रेशर से फीमोरल नर्व डैमेज हो सकती है। हिप डिसलोकेशन हो सकती है अगर अगेन फॉल्टी स्टीरअप्स यूज किए होंगे तो। Now here we also have to know about the different types of stirrups that are available. अलग अलग हॉस्पिटल्स में अलग अलग टाइप के स्टिरअप्स अवेलेबल होते हैं। तो here we have one is a knee crutch. नी क्रच क्या है? जो ऐसा ऐसा होता है ना, इसके आगे आप जो है सॉरी क्लैंप्स लग जाते हैं, है ना, सिक्योर करने के लिए। अदरवाइज इट्स जस्ट बेसिकली कि अगर ये मेरा नी है तो इट्स जस्ट ऐसा, then तो वो उसमें ऐसे लटक जाता है ऐसे, that way you can see it in the picture, it's very clear. Now इसमें क्या होएगा? now obviously it's acting on the knee के यहाँ पे लेग को सपोर्ट दी जा रही है, तो पेरियोनियल नर्व इंजरी हो सकती है और फुट ड्रॉप हो सकता है, न्यूरोपैथीज हो सकती है। फिर आता है कैंडी केन, के ऐसा एक स्लिंग है, उसके अंदर आप उसके पैर को फुट को फंसा देते हो, ठीक है। सो ये कैंडी केन क्या करे? कैंडी केन क्या होता है? देयर कैन बी प्रेशर ऑन द डिस्टल सूरल नर्व या प्लांटार नर्व्स पे, ठीक है। And other apart from that, hyperabduction may exaggerate the flexion and stretch on the sciatic nerve. Then you have the Booth type. Booth type क्या होता है? ये basically may produce support more evenly and reduce localized pressure. ये क्या है कि किस्म से आपको एक बूट दे दिया, आप बूट में अपने पैर को फंसा लिया है और उसको सपोर्ट दे दिए, तो that is another third type of stirrup that is generally available. Most commonly आप knee crutch and candy cane is what you'll generally see in the OTs. Okay. Then, so that is about lithotomy. Next, we come to the lateral position or kidney position. Now, there's a very little difference between the lateral position and the kidney position. तो इसलिए कई लोग उसको equate भी कर देते हैं. But there is a slight difference. I'll let you know. Now, when the patient is lying on one side, पस्सा लेके लेट रहे हैं ना, तो one side of the lying with one side facing operative side uppermost. Obviously, जिस side की surgery होनी है वो ऊपर रहेगी, है ना. इसमें क्या है? Legs will be flexed to 90 degrees and a pillow is placed in between the legs. ताकि प्रेशर पॉइंट ना बने एक दूसरे में, है ना। द रोल बैग्स रोल बैग upper arm rested on elevated arm rest and the other remains flexed. So there are two options. One is कि ऐसे जैसे हम लेटते हैं तो हमने एक आर्म के ऊपर दूसरा आर्म रख लिया, एक आप ऊपर वाले आर्म को एक आर्म रेस्ट भी दे सकते हो अलग से, जो एलिवेटेड आर्म रेस्ट होगी, ठीक है। देन रोल बैग्स में बी यूज्ड below the hip and the kidney to increase exposure of the iliac region. Now if you notice in this particular diagram, if I tell you, अगर आप ध्यान से दोगे देखोगे तो इसमें क्या कर रहे हैं? ये बेसिकली एक काइंड ऑफ एक वी बन रहा है, ये इधर को जा रहा है
और फिर ये इधर से नीचे को आ रहा है ना, तो यहाँ पे एक वी बन रहा है। जो लैटरल पोजीशन होगी उसमें पेशेंट फ्लैट होगा, दैट विल बी द ओनली डिफरेंस। लैटरल में फ्लैट होता है, किडनी पोजीशन में थोड़ा सा ये जो है वी लाइन बनती है, ठीक है। दैट इज द डिफरेंस इन the lateral position and the kidney position. Now, how are they making this V line? कैसे बन रहा है ये V? Basically ये बन रहा है by lifting the table from here. इस पॉइंट से अगर आप नोटिस करोगे तो ये टेबल को ऊंचा किया गया है, ठीक है। देर इज अ स्पेशल क्लैंप होता है वहां पे, आप उससे ऊंचा कर सकते हो उसको, ठीक है। वो रोल बैग भी आप इंसर्ट कर सकते हो अंदर कोई, या फिर कई पोजीशंस में वो किडनी के लिए यू हैव अ स्पेशल अटैचमेंट विच यू कैन लिफ्ट इट अप। तो इससे क्या होएगा, इससे ऑब्वियसली देखो, अब इससे क्या होएगा कि ये वाले एरिया का जो एक्सपोजर है वो बढ़ जाएगा, ठीक है, बिकॉज वो ओपन अप हो जाएगा। नॉर्मली कैसे तो पेशेंट होता है, ऐसे होता है थोड़ा सा पेशेंट, है ना। तो अब इसके करने से आपका क्या हो गया, आपका पेशेंट ऑलमोस्ट सीधा सा हो गया, है ना। ये देखो, इस ऑलमोस्ट सीधी लाइन होगी ना ये, दैट वे। नाउ हेड इज ऑब्वियसली सपोर्टेड ऑन द पिलो ओवर हियर आल्सो। नाउ what precautions have you to take? If a table brake is used, it must be correctly leveled with the iliac crest to prevent alteration in respiration and severe post-op back pain. आप अगर टेबल ब्रेक कर रहे हो, टेबल ब्रेक जो मैं आपको बता रही थी कि टेबल में कई बार ऐसा क्लैंप होता है जो आप ऊपर को ओपन करोगे तो टेबल वहां से ब्रेक होकर ऊपर को चढ़नी शुरू हो जाएगी, ठीक है। दैट विल एक्ट लाइक अ नेचुरल रोल दैट इज प्रेजेंट एज एन अटैचमेंट इन द टेबल इटसेल्फ। तो अगर वो आप कर रख रहे हो या रोल भी रख रहे हो, तो आप कौन सी पोजीशन पे रख रहे हो ये बहुत जरूरी है, बिकॉज नहीं तो फिर रेस्पिरेशन हैम्पर हो सकती है या फिर बैकएक हो सकती है बाद में। नाउ अदर थिंग यू इंश्योर इज द ईयर इज नॉट ट्रैप, पता चले कान ऐसा हुआ हुआ है तो फिर वो बाद में पेन करता रहेगा, कार्टिलेज में पेन होनी शुरू हो जाएगी। आर्म सपोर्टेड होने चाहिए और पैडेड होने चाहिए ताकि नेक्रोसिस ना हो। सेम इज विद लेग्स, है ना, दे शुड बी पैडेड। अब यहाँ पे द बोनी प्रोमिनेंसेस ऑन द साइड विल टेक अ रोल, है ना। तो कौन से आ जाएंगे, रिब्स, इलियाक क्रेस्ट, greater trochanter, medial lateral femoral condyles, tibial condyles and the malleoli। तो इन पे आपने बोनी प्रोमिनेंसेस पे ध्यान देना है ताकि ये प्रेशर नेक्रोसिस ना होए। फिर आ जाते हैं पोटेंशियल कॉम्प्लिकेशंस। व्हाट आर द पोटेंशियल कॉम्प्लिकेशंस? नाउ इफ द किडनी रेस्ट इज रेज्ड टू मच, द लंग्स विल नॉट एक्सपैंड एडिक्वेटली, जिसकी वजह से साइनोसिस हो सकता है, हाइपोटेंशन हो सकती है। आप नोटिस करोगे कि जो यूरो सर्जन होगा वो हमेशा कंफर्म करेगा विद द सर्जन कि हाँ भाई जो पोजीशन है वो आपको आपको डिफिकल्ट तो नहीं, आपको हैम्पर तो नहीं कर रही। Then there is injury to the brachial plexus, median nerve, radial nerve and ulnar nerves can occur if the upper arm is not supported. Because obviously वो upper arm ऐसे है, तो अब अगर वो ड्रैग हो जाएगी कहीं पे, फॉल होएगी तो वो मुश्किल करेगी। Then if the head is not supported adequately, brachial plexus can get stretched. Then the perineal nerve damage may result from compression of the lower knee against the hard surface। अभी obviously एक नी के ऊपर दूसरा नी भी तो है ना, बीच में पिलो है, लेकिन जो नीचे वाला नी है, इन दोनों के बीच में प्रेशर रिड्यूस करने के लिए आपने पिलो रख दिया, लेकिन जो नीचे वाला नी है वो अगर डायरेक्टली उसमें कॉन्टैक्ट रहता रहा ज्यादा समय तक तो इट कैन कॉज इन पेरोनियल नर्व डैमेज। So here you see the pressure points in this particular position. You have the scapulae, okay, you have the ribs, the scapulae, the ribs, the iliac crest, the greater trochanter, the lateral part of the knee, okay, the condyles, the femoral and tibial condyles, then the lateral malleoli, यहाँ पे मीडियल, ऊपर वाले के लिए मीडियल मैल्यूलस बिकॉज वो नीचे को लगेगा, ठीक है। Then we come to the neurosurgical position. Now this is also a special position in which basically the patient is in prone position, लेकिन prone position के साथ साथ the head is positioned in a spike, ठीक है। तो उसकी वजह से वो उनका एक्सपोजर जो है वो ओपन हो जाता है। तो नाउ दिस इट ऑल्सो कैन बी डन इन सुपाइन पोजिशन, प्रोन पोजिशन, इन लैटरल पोजिशन ऑल्सो, ठीक है। डिपेंड्स ऑन वेयर यू आर, व्हाट एरिया यू आर ऑपरेटिंग। इसमें क्या होगा, बेसिकली देखो यहां तक टेबल होगा, उसके आगे अटैचमेंट होगी। अगर वो सुपाइन है तब भी यहां तक टेबल है, प्रोन है तब भी यहां तक टेबल है, लैटरल है तब भी शोल्डर के लेवल तक टेबल है। इफ यू कैन नोटिस इन दिस पिक्चर इटसेल्फ, the table is basically only up to the level of the shoulders, right? Shoulders के आगे there is no table, तो वो head को support मिल रहा है with the spiked headrest,
ये स्पेशल हेडरेस्ट होती है न्यूरोसर्जिकल केसेस के लिए. Now, the head of the table may be tilted a little to facilitate venous drainage and to reduce the CSF pressure of the in the brain. Okay. अब इसमें हमने क्या ध्यान देना है? ऑब्वियसली सबसे पहले हमने ये ध्यान देना है कि द पेशेंट इज फुल्ली एनेस्थेटाइज्ड बिफोर. क्योंकि देखो जो ये हेड स्पाइक लगता है इसमें बेसिकली देयर इज आल्सो यू कैन से इन अ वे इट्स लाइक अ क्लैंप फॉर द हेड. तो एक साइड में दो क्लैंप्स होते हैं, एक साइड में एक क्लैंप होता है. तो लाइक यू कैन से स्क्रू. या हमने वो क्लॉ हैंड देखा होगा ना, जो आप मॉल्स वगैरह में जाते हो तो वो गेम होती है क्लॉ हैंड वाली, जिसे आप क्लॉ से वो टॉय को पकड़ते हैं. इट्स समथिंग लाइक दैट, बट वो ऐसे नहीं है, वो उसका ऐसे रिंग है बस. इट्स लाइक दिस एंड इट्स होल्डिंग फ्रॉम हियर. ओके. तो दोनों साइड से होल्ड करा. तो ऑब्वियसली द पेशेंट शुड बी एनेस्थेटाइज्ड बिफोर डूइंग दैट थिंग. देन द आईज शुड बी वेल कवर्ड एंड प्रोटेक्टेड बाय पैड्स. अगर उल्टा भी हो रहा है पेशेंट, लैटरल हो रहा है, सुपाइन में है, जैसे मर्जी है, तो आई पैडेड होने चाहिए और कवर्ड होने चाहिए. अगर आई ओपन रहेगी जो एनेस्थीसिया में होगा पेशेंट, तो देयर कैन बी आई इंजरी, कॉर्नियल इंजरी हो सकती है, कॉर्नियल डैमेज हो सकती है. नाउ द पोजीशन ऑफ द स्पाइक में ऑल्सो हार्म द आईज एंड द ईयर्स. तो आपको ध्यान रखना है कि वो किस पोजीशन पे उसको लगा रहे हैं, कि बहुत ऐसा तो नहीं लग रहा कहीं, है ना, यहाँ तो नहीं आ रहा, यहाँ तो नहीं आ रहा. तो आपको वो पॉइंट का ध्यान देना पड़ेगा. देन फेस इज प्रोटेक्टेड फ्रॉम प्रेशर इन द प्रोन पोजिशन. जब वो नीचे को है तो आपको देखना है कि कहीं पे भी कोई कॉन्टैक्ट होके वो स्पाइक से कहीं प्रेशर तो नहीं पड़ रहा. अगर है तो आप वहां पे पैडिंग कर दीजिए बीच में. देन आर्म्स शुड बी इन गुड एनाटॉमिकल अलाइनमेंट्स. जनरली इन सर्जरीज में आर्म्स आर केप्ट स्ट्रेट डाउन. ठीक है. देन द बोनी प्रोमिनेंस आर प्रोटेक्टेड इन ऑल पोजिशंस. जैसे देखो अब यहाँ पे आप देखोगे आर्म्स आर केप्ट लोअर डाउन, राइट, स्ट्रेट डाउन. नाउ व्हाट आर द कॉम्प्लिकेशंस? बेसिकली जो प्रोन सुपाइन पोजीशन की कॉम्प्लिकेशंस है वही होती है. उसके अलावा द डेवलपमेंट ऑफ स्किन प्रेशर कैन अकर ओवर द ईयर, द चीक, फेस, डिपेंडिंग कि आपका हेड रिंग कितने घंटों के लिए आपने यूज किया हुआ है, उस हिसाब से. साइटिक नर्व डैमेज हो सकती है अगर प्रोलॉन्ग प्रेशर होगा डॉर्सम ऑफ द फुट्स पे, ऑफ द फीट पे, सॉरी. जैसे वो इसमें इन्होंने जो पोजीशन बनाई है, अगर वो ज्यादा प्रेशर रहे, ज्यादा लंबे टाइम तक रहेगा, तो कैन कॉज साइटिक नर्व इंजरी. Then you have fracture table position. Fracture table position is a very common position which is used generally for femur fractures. Okay. अब ये इसमें क्या कर रहे हैं? Patient is positioned supine with the pelvis stabilized against a well padded vertical perineal post. Again the same thing. एक post होती है, वहां तक आपका पेरिनियम तक पेशेंट वहां तक आ जाता है. उसके आगे जो है फ्रैक्चर टेबल की अटैचमेंट लगी होती है. तो वो इसको हम ट्रैक्शन टेबल भी बोलते हैं, फ्रैक्चर टेबल भी बोलते हैं. ठीक है. ट्रैक्शन ऑफ ऑपरेटिव लेग इज अचीव्ड आइदर बाय अ बूट शेप्ड कफ. जैसे स्टिरअप है बूट शेप, वैसी बूट शेप कफ होती है, या डिवाइसेस होती है विद रिस्ट्रेनिंग स्ट्रैप्स. अनअफेक्टेड लेग कैन आइदर बी केप्ट इन अ स्टिरअप और कैन ऑल्सो बी केप्ट इन अ ट्रैक्शन. कई लोग दोनों पैरों को ट्रैक्शन लगा देते हैं, बट जो ऑपरेटिव होता है उसको ट्रैक्शन खींचते हैं, दूसरे में खींचते नहीं है. कई लोग एक को ट्रैक्शन टेबल पे डालते हैं और दूसरे को लिथोटमी के स्टिरअप में डालते हैं. ठीक है. Now, this is a common position for ORIF of the hip, that is open reduction, internal fixation of the hip और the closed femoral nailing. ठीक है. तो फीमर की सर्जरीज में जनरली ये यूज किया जाता है. So here you can notice it's either, जैसे इनमें इन्होंने क्या किया, दोनों में इन्होंने ट्रैक्शन टेबल लगाई. ये बूट शेप का सॉरी लेग सपोर्ट है जिससे ट्रैक्शन दी जा रही है. एंड देयर इज द पेरिनेल एरिया तक पेशेंट नीचे आ जाता है. ठीक है. Now, what are the precautions? Patients usually brought in the theater with hospital bed and traction is applied. Obviously, आप इस टेबल के ऊपर अंडर नहीं कर सकते हैं पेशेंट को, तो आपको जनरली ट्रॉली पे पेशेंट को अंडर करना पड़ता है और उससे आप फिर स्पेस को ट्रांसफर करते हैं. Ensure patient is anesthetized before transfer onto the OT table. Again, it's a what I should say, a difficult kind of a position, है ना. यहाँ पे इंजरी के भी चांसेस हैं, डिफिकल्ट पोजीशन है, तो ये पहले एनेस्थेटाइज होना चाहिए, उसके पहले आप नहीं कर सकते हो. Then operating table and attachments are ready according to the surgeon's preferences. या फिर जो आपका मैनुअल है उसके हिसाब से. तो ये इंपॉर्टेंट है. ऐसे नहीं कि आपने अभी पेशेंट को उस पर डाल दिया उसके बाद अभी आप अटैचमेंट ढूंढने जा रहे हो कि कौन सी लगनी है. तो वो सारी अटैचमेंट्स पहले आपके पास होनी चाहिए बिफोर यू पुट द पेशेंट ऑन दैट टेबल. Then caution and extra care should be taken regarding force injuries, musculoskeletal and nervous system injuries during the transfer. क्योंकि देखो आपने ट्रॉली से उसको टेबल पे ट्रांसफर करना है, तो आपने ध्यान रखना है कि एक पेशेंट गिर ना जाए, एक आप उसको शर से ही कोई इंजरी ना कर दे, स्किन इंजरी ना कर दे. ठीक है. एंड अपार्ट फ्रॉम इट बोनी प्रोमिनेंसेस हैव टू बी प्रोटेक्टेड. कॉम्प्लिकेशंस क्या हो सकता है? प्रेशर हो सकता है पेरिनियल पोस्ट की वजह से, है ना. जेनेटालिया को इंजरी हो सकती है, तो बहुत ध्यान से आपको जेनेटालिया को साइड में करना पड़ता है थोड़ा सा, सो दैट यू कैन एक्चुअली गिव अ प्रॉपर ट्रैक्शन.
देन फीकल इनकॉन्टिनेंस एंड लॉस ऑफ पेरिनियल सेंसेशन कहलाकर, अगर पेरिनियल या प्यूडेंटल नर्व इंजरी हो जाएगी तो। अगर टाइट स्ट्रैप करोगे तो ऑब्स्ट्यूरेटर नर्व इंजरी हो सकती है और फुट ड्रॉप हो सकता है। देन वी कम टू नी चेस्ट पोजिशन। अभी नी चेस्ट दो तरह से हो सकता है, आइदर लाइक द पिक्चर 1 और पिक्चर 2, ठीक है, डिपेंडिंग ऑन द पेशेंट्स प्रेफरेंस, सॉरी, डिपेंडिंग ऑन द सर्जन प्रेफरेंस। सो एंड द प्रोसीजर फॉलोड इन दैट पर्टिकुलर हॉस्पिटल। सो अभी इसमें बेसिकली है पेशेंट इज इन द प्रोन पोजिशन, but the both legs are abducted and flexed together at right angles. ठीक है, the knees flexed and the hip elevated. Head and shoulders and chest rest directly on the table. Now arms are placed above the head and it's the primary position for sigmoidoscopy, laminectomy procedures. तो अगर आपको सिर्फ डिस्क करनी है, डिसेक्टमी करनी है, लैमिनेक्टमी करनी है, तो ये पोजीशन में करेंगे। अगर आपको सिग्मोइड कोलोन की सर्जरीज करनी है तो वो इसमें कर सकते हैं, है ना। देन precaution क्या है? Again, the legs have to be moved together to prevent back strain. Then arms gently lift up to prevent dislocation. Again, arms should not be hyperextended above the head. It should be kept in this position. Then head is not hyperextended and placed on the side. Again, किसी एक साइड को टर्न कराना है, जैसे हमने प्रोन में कराया था। Bony prominences again, cheek है, ear, forehead, nose, eyes, acromion process, breast, genitalia, patella, dorsum of feet and toes have to be protected. कॉम्प्लिकेशन क्या हो सकता है? लोअर नेक अपर बैक इंजरी हो सकती है अगर हाइपर एक्सटेंडेड नेक हुआ, सेम प्रोन के जैसे, है ना। अल्नर रेडियल नर्व पैल्सी हो सकती है अगर आपने टाइट आर्म रिस्ट्रेनर लगाया तो। हाइपोटेंशन हो सकता है ड्यू टू प्रेशर ऑन द इंफीरियर वेना cava एंड पूलिंग ऑफ ब्लड इन द लोअर एक्सट्रीमिटीज। अगेन वन ऑफ द रीजंस व्हाई मेनी अ टाइम्स द सर्जन्स प्रेफर द फर्स्ट पोजीशन, बिकॉज इसमें क्या है, एब्डोमेन फ्री हो जाता है। आपने एक सपोर्ट जो है चेस्ट के अंदर नीचे डाली होती है, एंड जो हिप्स हैं, सॉरी, हाँ, द लेग्स है, लोअर लिम्स, दे आर फ्लेक्स्ड एट द हिप्स एंड abducted along. So उससे क्या होएगा कि the abdomen will get free in between. Then shoulder dislocation or brachial plexus injury can occur while placing the arms. Patients may fall from the table if the bracket is not secure and or they fail to support the patient's weight. Again, इसमें भी बहुत ध्यान देने की जरूरत होती है। कोई बहुत हैवी पेशेंट है, कोई बहुत मोटा पेशेंट है, बड़ा पेशेंट है, तो उसमें वो बहुत ऊंचा हो जाता है, तो देयर पॉसिबिलिटी दैट द पेशेंट माइट फॉल, तो उसको आपको उस हिसाब से सपोर्ट करना पड़ेगा, सिक्योर करना पड़ेगा, स्ट्रैप करना पड़ेगा, ठीक है। अब इसमें आपने देखा जो आपकी पोटेंशियल प्रेशर पॉइंट्स है, यू हैव द चीक, ईयर, द एंटीरियर रिब केज एंड ब्रेस्ट, एंटीरियर इलियाक क्रेस्ट एंड जेनिटालिया, द नीज एंड द एंटीरियर टैलस एंड टोज। फिर आ गया सेमी फाउलर्स एंड फाउलर्स पोजिशन। तो ये क्या है बेसिकली? इसमें इट्स लाइक अ सिटिंग पोजिशन, जिसे इसको हम कई लोग बीच चेयर पोजिशन भी कहते हैं। बीच पे जो चेयर्स लगी होती है ना, वो वाली पोजिशन, तो कई इसको वो भी कहते हैं। तो इसमें क्या है बेसिकली, पेशेंट इज सुपाइन एंड द अपर बॉडी इज फ्लेक्स्ड। सुपाइन लेटा है, अपर बॉडी को हमने फ्लेक्स कर दिया। अब ये फ्लेक्स हम 45 डिग्री कर सकते हैं, कोई 30 डिग्री करता है, 45 डिग्री करता है, कोई 90 डिग्री फ्लेक्स करता है, डिपेंडिंग ऑन हाउ व्हाट सर्जरी यू वांट टू परफॉर्म। Now, इसमें आर्म्स आर जनरली प्लेस्ड ऑन द लैप्स और आर्म बोर्ड। फुट रेस्ट इज अगेन यूज, क्योंकि देखो अल्टीमेटली आप उसको ऐसे करो तो यहाँ से सरक के नीचे को जा सकता है, तो यहाँ पे आप फुट रेस्ट दे देते हो साथ में, ताकि वो नीचे को फिसले ना। इट्स अ यूजफुल पोजिशन अगेन क्रेनियोटमीज के लिए, शोल्डर सर्जरीज के लिए, ब्रेस्ट रिकंस्ट्रक्शन के लिए, तो इन सब सर्जरीज के लिए इट्स अ आइडियल पोजिशन। प्रिकॉशन क्या लेना है? सर्वाइकल, thoracic एंड lumbar section of the spine must be aligned once positioned is established. आपको ये ध्यान रखना है कि जो आपकी फ्लेक्शन है वो आपकी हिप जॉइंट पे ही होनी चाहिए, वो नी सॉरी वो चेस्ट वगैरह के एरिया में फ्लेक्शन नहीं हो रही चाहिए। व्हाट आई मीन टू से इज दैट कि जो पोजीशन है अगर पेशेंट की, तो it has, you see, if this is your table, तो you have to see to it के ये अगर हेड आ रहा है एंड ये बॉडी आ रही है, तो यहां से आगे ये लिम्स शुरू हो जाए। ये पॉइंट जो है ये वाला, दिस हैज टू बी द हिप्स, ठीक है, दिस शुड बी द हिप्स, सॉरी, ओके। देन इसमें ये ना होए कि आपका हेड यहाँ है, ओके, और ये चेस्ट के यहाँ पे ही कर्व बन रहा है और पेशेंट नीचे जा रहा है, ठीक है। इससे क्या होएगा, इससे भी इंजरी होएगी एंड चेस्ट पेन होएगी बाद में बहुत ज्यादा।
तो इसलिए आपको ये चीज का ध्यान रखना है कि आपकी फ्लेक्शन जो है वो एग्जैक्टली किस पॉइंट पे हो रही है. Now, extra padding are required for bony prominences like for coccyx, then the ischial tuberosities, the elbows, knees, and scapulae. The use of anti-embolism stocking may be again used to assist venous return. And repositioning, any repositioning in the end of surgery should be gradual and slow, not should be gentle and slow. इसमें अभी क्या हो सकता है, इसमें ऑर्थोस्टैटिक हाइपोटेंशन हो सकती है. ऑर्थोस्टैटिक हाइपोटेंशन क्या होता है कि कई भी होता है ना, जो एकदम से उठते हैं तो आपको एक बार चक्कर आता है, फिर आप यू नो सेट होते हैं. दैट इज व्हाई, दैट इज बिकॉज ऑफ वीनस पूलिंग इन द ब्लड इन द लोअर लिम्स, इन द काफ्स. इसलिए ऑर्थोस्टैटिक हाइपोटेंशन है. तो इसमें भी हाइपोटेंशन होने के चांसेस होते हैं. रिस्क ऑफ वीनस थ्रोम्बोसिस एंड एम्बोलिज्म हो सकती है अगर इंपीडेड वीनस रिटर्न हुआ तो. हाई रिस्क ऑफ डेवलपमेंट ऑफ स्किन प्रेशर ओवर अफेक्टेड बोनी प्रोमिनेंसेस. Alteration on the chest movement due to restriction from rested arms or tight straps. Now, अभी देखो इसके potential positions. अभी देखो ये this is a position that they have shown for cranial surgeries. Again देखो head stirrup लगा हुआ है यहाँ पे, है ना, head strap लगी हुई है. Now इसमें क्या आ गया, scapula, ischial spine, back of knees and the calcaneum. These will be the pressure points. फिर आ गया जैक नाइफ पोजिशन. अब जैक नाइफ पोजिशन क्या है? जैक नाइफ पोजिशन इज अ मॉडिफिकेशन ऑफ प्रोन पोजिशन. यहाँ पे द हिप्स आर सपोर्टेड ऑन अ पिलो एंड द टेबल इज फ्लेक्स्ड एट 90 डिग्री एंगल, रेजिंग द हिप्स एंड लोअरिंग द हेड एंड बॉडी. बेसिकली आपको हिप्स जो है वो खोलने हैं क्योंकि आप वहां की सर्जरी करना चाहते हो. जनरली ये हेमोरॉइडेक्टमी में, पाइलोनाइडल साइनस में, एनल सर्जरीज जो होंगी उसमें ये पोजिशन यूज की जाती है. Straps are placed over the thigh to prevent shearing and sliding. The head, face, shoulders, chest, and feet are supported by soft pads or rolls to prevent bony pressure. As I said, it's a common procedure for hemorrhoidectomy, pilonidal sinus surgeries, and other anal procedures. क्या ध्यान रखना है? पिलो या टॉवल ओवर शोल्डर्स एंड हिप विल फैसिलिटेट द चेस्ट एक्सपेंशन. देखो अगेन इट इज अ प्रोन पोजीशन अल्टीमेटली, तो यू हैव टू सपोर्ट एंड गिव सपोर्ट अंडर द चेस्ट एंड दी हिप्स. उससे क्या होगा, एब्डोमेन फ्री हो जाएगा एंड पेशेंट ब्रीथ सही कर पाएगा और उसकी venous congestion नहीं होएगी. Anti-embolism stockings and can aid venous return. Head should not be hyperextended, should be placed on the side and kept supported. Pressure points obviously well protected, जो हो गए cheek, ear, acromion process, breast, genitalia, patella, dorsum of feet and toes. Then patient is to be turned with a log roll. Log roll technique क्या होती है, अभी यहाँ पे ये भी बता देते हैं आपको. लॉग रोल टेक्निक होती है, आपने कभी भी कोई वुडन लॉग देखा होगा, वुड का बड़ा सा पीस होता है, उसको वुड लॉग बोलते, लॉग ऑफ वुड, है ना. तो वो कैसे, वो इकट्ठा ही रोल होता है ना आगे पीछे. तो लॉग रोल प्रोसीजर इज बेसिकली कि सारा का सारा पेशेंट इकट्ठे ही टर्न हो रहा है. ऐसे नहीं कि आप पहले शोल्डर टर्न कर रहे हो, फिर आप हिप टर्न कर रहे हो, या पहले आप हिप टर्न कर रहे हो और फिर उसके बाद आप शोल्डर टर्न कर रहे हो ना. आपको एक साथ ही हिप और शोल्डर दोनों को टर्न करना है. इट इज दैट वे. ठीक है ना. इसमें कॉम्प्लिकेशन क्या आ सकती है? लोअर नेक, अपर बैक पेन हो सकती है बिकॉज ऑफ हाइपर एक्सटेंशन. जेनिटालिया को इंजरी हो सकती है बिकॉज ऑफ प्रेशर. रेडियल नर्व पैल्सी हो सकती है बिकॉज ऑफ रिस्ट्रेनर्स. वीनस पुलिंग हमने बोला तो हो रही है, तो हाइपोटेंशन हो सकता है उससे, एम्बोलिज्म हो सकता है उससे. शोल्डर डिसलोकेशन हो सकती है, अगेन अगर आपने हाइपर एक्सटेंड कर दी तो डिसलोकेशन हो सकता है, ब्रेकियल प्लेक्सिस इंजरी हो सकती है. ठीक है. So that is all about few important surgical positions and special positions in during surgeries. I hope it's very clear. It's an important topic because ये बहुत commonly आप encounter करोगे during your OT procedures, and you should have knowledge कि आपको कौन से position में क्या problem आ सकती है और आप उसको कैसे prevent कर सकते हैं. ठीक है. So I hope you have understood the lecture. And if you like the lecture, please press on the like button and let us know about any doubts, queries, or any comments that you have in the comment box. Don't forget to subscribe to our channel. And till we meet again, bye bye. Take care.